This is Ayurved. conference will now be So, recorded. Ghar Wapsi is a series to help them to practice Ayurved, and this will enable themselves to promote Ayurveda also and to practice Ayurvedic medicine where the Ayurvedic medicines are not so much helpful. So, we are giving ready-made, you can say, formulas for different disorders, and this 10 lecture series contains Ayurvedic management in dermatology, Ayurvedic management in gynecology, Ayurvedic management in bleeding disorders, and so on. So I will urge all the participants and delegates to please register Ghar Wapsi series, which will be commencing from tomorrow onwards for 10 days. And coming back to today's program, I will request all the delegates to please put their mic on mute mode and please put your camera on switch off mode. Please don't try to talk in between the lecture and put your questions if there are any in the chat box. Please don't try to speak in between, otherwise you will be removed from the meeting. Please follow the discipline and enjoy the lecture. So today we are having Dr. Pankaj Dated sir, who is my good friend and really a very scholar practitioner who is practicing Ayurveda since last more than 15 years, and he will be talking on Rakta Mokshan. So I will request Dr. Amit Chavan sir to please introduce today's speaker, Dr. Pankaj Dated sir. Over to you, Dr. Amit Chavan sir. Thank you so much, sir. It gives us an immense pleasure to introduce our today's speaker, Dr. Pankaj Thathed, sir. Dr. Pankaj Thathed, sir, has completed his UG from. Hello, hello. Dr. Pankaj Thathed, sir, has completed his BMS from Nalasopara Ayurved Medical College, Mumbai. Sir has completed his post-graduation in Panchakarma at ASS Ayurved College, Nashik. Sir has got his teaching experience of more than 14 years, 4 years of assistant professor at YMT Ayurved Medical College, Kharghar, and 10 years of uh, experience at APM's Ayurved College, Sion, Mumbai. Sir is also working as a course coordinator for Panchakarma for general practitioners for last 6 years, which is conducted of 21 days hands-on training program at Ayurved Prasarak Mandal's Ayurved Mahavidyalaya, Sion. Sir is also course coordinator of first live demonstration of Panchakarma procedure from Ayurved Prasarak Mandal's Ayurved College to Taj Hotel, Mumbai. Sir has also conducted Panchakarma Technicians course at YMT Ayurved College, Kharghar, Navi Mumbai. Sir is recently working at present as an assistant professor at Panchakarma department at Ayurved College, Sion. Sir is also recognized PG teacher and PhD guide. So hereby we welcome Dr. Pankaj Thathed, sir, in today's session of Shala to present his knowledge and views on Rakta Mokshan cupping therapy. Over to you, Dr. Pankaj Thathed, sir. Thank you very much. Ayushala team, I congratulate you for conducting the lecture series. Thank you very much. My today's topic is on cupping therapy. There are few questions may come to your mind, like cupping. There is any description of cupping in Ayurveda? Yes or no? We don't know. Or there is any help from cupping we can get while treating our patients? There are so many questions which may come to your mind. So I will try to explain all this in my lecture. I will start with my presentation. So first, the importance of Rakta Mokshana. As you know, कि Basti is a half चिकित्सा in Ayurveda. बस्ती ये आधी चिकित्सा बताई गई है आयुर्वेद में. सेम रक्त मोक्षण भी एक आधी चिकित्सा बताई गई है शल्य तंत्र के हिसाब से. सुश्रुताचार्य ने उसको आधी चिकित्सा बताई है. तो कब करना चाहिए रक्त मोक्षण?
या आप ऐसा भी ले सकते हो कि ये व्याधि हो, ये अंग के, ये पार्ट्स के अगर व्याधि हो तो हमें रक्तमोक्षण ही करना चाहिए, ऐसा भी हम लोग उसको ले सकते हैं। सुश्रुताचार्य कहते हैं कि त्वक दोष, एनी स्किन डिसऑर्डर्स, ग्रंथि अर्बुद लाइक कुछ प्रेजेंटेशंस हो तो, जहाँ शोथ है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है वहां पे, या शोणित के कारण, शोणित यानी रक्त, रक्त के कारण जो भी कोई रोग उत्पन्न हुआ हो, आपको ऐसा लगता है, वहां पे हम लोग रक्त मोक्षण कर सकते हैं। और इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि अगर ये व्याधि है तो ये व्याधि तो चले ही जाएंगे, उससे उपशय आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये वापस भी नहीं होंगे। सो दिस इज दी यू कैन से बेनिफिट ऑफ रक्त मोक्षण। तो हम लोग कहाँ कहाँ रक्त मोक्षण कर सकते हैं, ये जस्ट एक सब टेक्सुअल बातें हैं, लेकिन हम लोग आगे जाने के पहले, कपिंग थेरेपी के पास जाने के पहले थोड़ा सा रिवाइज करके लेते हैं, तो आपको भी ठीक रहेगा कि हम लोग कहाँ कहाँ रक्त मोक्षण कर सकते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में और कैसे करने का है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि स्टोमेटाइटिस, देन नेत्रपाक, शिरोरुजा, विद्रधि, कोथम लाइक डिकम्पोजिशन लाइक कंडीशंस, पदर, वातरक्त, कंडू, अर्श, कुष्ठ, स्किन एनी डिसऑर्डर्स स्किन के, गुल्म, विसर्प, इन सब जगह हमको आचार्यों ने रक्त मोक्षण करने के लिए कहा हुआ है। तो अगर समझो हमें कुछ भी नहीं समझा कि रक्त मोक्षण कब करना है, ये व्याधि कौन सा है, रक्त का है कि और दूसरा कौन सा है, तो हम लोग कैसे समझे? तो उन्होंने कहा है कि जहां कहीं वेदना होती है, जहां कहीं पाक होता है, जहां कहीं दाह होता है, या कुछ भी नहीं समझे तो रक्त मंडल, रक्त के वर्ण का, यानी रेड लाइक कलर डिस्कलरेशन है आपके बॉडी पे, या कंडू है, या कोथ है, शोथ है, या पीटिका उत्पन्न हुई है, तो हम रक्त मोक्षण कर सकते हैं। ये सब रक्त दृष्टि के लक्षण है। तो अगर कुछ भी नहीं समझा तो ये कुछ पॉइंट्स है, वो देख के हम लोग रक्त मोक्षण कर सकते हैं। दूसरी तरह से आचार्यों ने ये भी कहा है कि आपने स्नेहन किया, स्वेदन किया, रुक्षण किया, स्तंभन किया, वमन दिया, विरेचन दिया, बस्ती दिया, ओरल मेडिकेशंस दिए, सब कुछ दिया आपने, तो भी पेशेंट को फर्क नहीं गिर रहा है, तो आप उसे रक्त मोक्षण की तरह करके ठीक कर सकते हैं। वो बड़ा लंबा चौड़ा श्लोक है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि कुछ भी करके आपको अगर फर्क नहीं गिर रहा है, पेशेंट को उपशय नहीं मिल रहा है, तो आपको वहां रक्त मोक्षण करना चाहिए। तो जहां जहां वेदना है, वेदना का शमन करना है आपको, पाक का शमन करना है, शोथ उत्पन्न हुआ है, वहां पे आपको रक्त मोक्षण, शोणित श्रावण करना चाहिए। तो सब जगह पे रक्त मोक्षण करना चाहिए क्या? नहीं, उन्होंने उसकी कैटेगरीज की हुई है। जैसे अगर समझो ज्यादा रक्त दृष्टि नहीं है, 3 प्रकार की रक्त दृष्टि है, तो आप उसे उपवास से, लंघन से ठीक कर सकते हैं। मध्यम प्रकार की है तो रक्त पित्त चिकित्सा करके या विरेचन देके आप उसे ठीक कर सकते हो। या बहुत दोष है, रक्त दोष की दृष्टि बहुत ज्यादा हो गई है, तो आप रक्त पित्त चिकित्सा और रक्त मोक्षण, ये दोनों के जरिए आप वो पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, वो व्याधि को ठीक कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ पे हमें रक्त मोक्षण नहीं करना है। आजकल हम लोग, ये जो स्लाइड में पहला ही बताया गया है कि 16 साल के नीचे के बच्चों को और 70 साल के ऊपर के कोई भी रहो, उसे हमें रक्त मोक्षण नहीं करना चाहिए। लेकिन दिस इज ट्रू फॉर सीरा वेधन, आई एम अगेन रिपीटिंग यू कि दिस इज ट्रू फॉर सीरा वेधन, ब्लड लेटिंग जो आप क्या नीडल या स्कैल्पेल से करते हो, नीडल से करते हो या आईवी सेट से करते हो, उसके लिए 16 साल का नीचे का भी बच्चा है, आप जलो का लगा सकते हो, 70 साल के ऊपर का है तो भी लगा सकते हो। लेकिन दिस इज एन जनरल कॉन्ट्रा इंडिकेशन,
आप लगा रहे हो, लेकिन ध्यान में रखो कि हाँ आप क्या कर रहे हो और शास्त्र ने उसकी अनुमति दी है कि नहीं दी है, वो ध्यान में रख के करना है हमें। इसीलिए इन जनरल कॉन्ट्राइंडिकेशंस में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ब्लड डिसऑर्डर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ब्लड लेटिंग, रक्त मोक्षण नहीं करना है। वैसे ही जब भी आप पेशेंट्स रक्त मोक्षण के लिए लेते हो, आज के दिन में उनको ये पूछना जरूरी है कि आप ब्लड थिनर यानी एस्पिरिन, क्लोपिलेट, इसके जैसे कुछ मेडिसिन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। आपको मालूम चाहिए कि वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है। अभी हम लोग सायन में प्रैक्टिस करते हैं, बाजू में धारा भी है। हम लोगों ने कितना भी पूछा उनको कि आप कुछ दवाई लेते हैं, नहीं हम लोग तो कुछ नहीं लेते, हम लोग तो कुछ नहीं लेते। तो वो एक डॉक्टर गोली देता है, वो लेते हैं। तो हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि पेशेंट कुछ नहीं लेता है, लेकिन ये टाइम पे वो पेशेंट वो सब दवाइयां लेते रहता है और रक्त मोक्षण में ब्लीडिंग रुकता नहीं, और फिर हम लोग टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि पेशेंट टेंशन में आता है कि इतना करके भी ब्लड रुक नहीं रहा है, तो डॉक्टर क्या कर रहा है। इसीलिए हम लोग को डबल टेंशन होता है कि एक तो ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है, ऊपर से पेशेंट पैनिक हो रहा है। इसके लिए ये सब बातों का हमें ध्यान रख के ही आगे जाना चाहिए। फिर कॉक्स इन्फेक्शन, अल्कोहल, इमेसिएटेड पेशेंट, हाइपरपैरेक्सिया पेशेंट, ये सबको हमको ध्यान में रख के ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से डूज एंड डोंट्स देखेंगे तो कहा नहीं करना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि जिन्होंने अभी रिसेंटली पंचकर्मा ट्रीटमेंट ली है, उनका रक्त मोक्षण नहीं करना चाहिए। उसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये है कि जिन्होंने आज विरेचन लिया है, जिन्होंने आज वमन लिया है, जिन्होंने आज नस्य लिया है, जिन्होंने आज बस्ती लिया है, उनको रक्त मोक्षण उसी दिन नहीं करना चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, स्नेह पीत, अस्वेद, अतिस्वेद, अस्निग्ध, अतिस्निग्ध। अभी ये लाइन का पूरा मतलब ये होता है कि जिन्होंने आज स्नेहपान किया है, उसको रक्त मोक्षण नहीं करना चाहिए। जिसका स्वेदन बराबर नहीं हुआ है या ज्यादा स्वेदन हुआ है, उनका रक्त मोक्षण नहीं करना चाहिए। यानी सम्यक स्नेहन, सम्यक स्वेदन होना जरूरी है। थर्ड पॉइंट में लिखा है कि जिनका वेन्स या जिनके भी बॉडी के वेन्स हमें बराबर नहीं दिख रहे हैं, उनका भी नहीं करना चाहिए। फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में पेशेंट आता है, हम लोग बताते हैं कि रक्त मोक्षण करना है, पेशेंट तैयार भी हो जाता है, ऑन टेबल वो डरने लगता है, नहीं मैंने आज तक कभी लिया नहीं है, मुझे तकलीफ होती है, मैंने कभी तो भी खून देखा था तो मैं चक्कर आके गिर गया था, ऐसा है वैसा है। ये जो सब कंडीशंस है, ये सब ध्यान में रख के हमें रक्त मोक्षण के लिए, या कपिंग बोलो, आप सीरा वेदन बोलो, जलोका के लिए बोलो, आगे बढ़ना चाहिए। क्लासिफिकेशन ये सब आपको याद ही रहेगा, बट स्टिल रक्त मोक्षण के जो प्रकार बताए, वो शस्त्र विस्त्रावण और अनुशस्त्र विस्त्रावण। उसमें प्रच्छान और सीरावेद शस्त्र विस्त्रावण है, और बाकी जलोका, श्रृंग, अलाबु ये अशस्त्र विस्त्रावण है। इसमें हम एक घटी यंत्र, घटी यानी मटका, उससे भी रक्त मोक्षण करते हैं, इसलिए उसका भी अंतर्भाव हम लोग इसमें कर सकते हैं। विघर्षण बोल के एक प्रकार है। विघर्षण यानी पारिजातक पत्र जो एक साइड से ये रहता है, ऊपर ये रहता ऊपर नीचे रहता है, उसका भी हम जीवा कंटक व्याधि में उसका भी घर्षण करके रक्त मोक्षण कर सकते हैं। ऐसे रक्त मोक्षण के प्रोसीजर प्रकार बताए गए हैं। लेकिन अगेन, सिर्फ ये प्रकार बता के कोई आचार्य रुके नहीं है, उन्होंने बहुत सारे कंडीशंस दिए हुए हैं, बहुत सारे ये बताया है कि आपको कब करना चाहिए, कितना वो दोष अंदर है, आपके शरीर के अंदर कितना अंदर गंभीर हुआ है, वो हिसाब से हमको रक्त मोक्षण का टाइप सोचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कहा है कि अभी देखिए हमारा टॉपिक है आज का कपिंग, और कपिंग के लिए फर्स्ट हमको प्रच्छान कर्म करना पड़ता है। तो ये प्रच्छान कर्म आयुर्वेद ने कब बोला है करने के लिए? वो बोलते हैं कि एक देशस्थ यानी शरीर के एक भाग में है जो फैला हुआ नहीं है, वहां पे आपको प्रच्छान करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट वो बोलते हैं पिंडित प्रच्छान, जहां पे पिंडित हुआ है, पिंड जैसा बना हुआ है या गोले जैसा बना हुआ है,
या शंकर भगवान की पिंडी के जैसा बना हुआ है, तो वहां पे आप प्रच्छान कर्म कर सकते हो। अगर उससे थोड़ा डीप है, ग्रथित है, गांठ हो गई है, वहां पे आप जलों का लगाओ। उससे भी अंदर अगर दोष गए हैं, वहां पे अलाबू लगाओ। उससे अंदर अत्यंत गंभीर गद दोष है, वहां पे श्रृंग लगाओ। और अगर सर्वांग में फैला हुआ है, तो आपको वहां पे सीरावेद करना चाहिए। ये जो रक्त दृष्टि होती है, ये रक्त दृष्टि शरीर के कितनी फैली हुई है, वो हिसाब से हमें रक्त मोक्षण करने के टाइप में से एक टाइप चूज करना है। यानी अगर समझो आपको लगता है कि ये बाबा सिर्फ 10 अंगुल तक ही रक्त दृष्टि है, शरीर में फैली हुई है, तो आप श्रृंग यूज करो। 12 अंगुल है तो अलाबू, एक हस्त है तो जलोका, और सर्वांग है तो सिरावेद। अभी बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि 10 अंगुल हम कैसे समझे, 12 अंगुल ये कैसे समझे। अभी इसके लिए मैं अभी बोल देता हूँ कि ये शास्त्र प्रमाण है। इसका जो साइंटिफिक रीजन हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मैं भी या जो भी हमारे स्टॉलवर्ड्स है, वो अभी तक इसका आंसर निकाल नहीं पाए। या 10 अंगुल कैसे गिनने का, 12 अंगुल कैसे गिनने का। ये तो मालूम है कि सर्वांग है तो सिरावेद करो, लेकिन ऊपर के तीनों बताना थोड़ा मुश्किल है। दोष, वात दृष्ट रक्त है तो आप श्रृंग से निकालिए। पित्त दृष्ट है तो जलों का यूज कीजिए। कफ है तो आप अलाबू लगा सकते हो, घटी लगा सकते हो। ये दोष के हिसाब से हमको क्या कौन सा प्रकार यूज करना है वो बताया गया है। अभी ये एक क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज होने वाला स्लाइड है। असुकुमार, असुकुमार यानी मेरा जैसा कोई आदमी है जो हट्टा कट्टा है, एज में भी ठीक है, उसको साइड या हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ हिस्ट्री बुरी नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं, डायबिटीज नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, तो आप उसका प्रच्छान और सीधा वेदन ये कर्म कर सकते हो। सुकुमार, सुकुमार है यानी स्त्री हो सकती है, बालिका हो सकती है, तो आप वहां पे श्रृंग या अलाबू यूज करो। परम सुकुमार, परम सुकुमार यानी बच्चे हो सकते हैं, बूढ़े लोग हो सकते हैं, वहां पे अगर आपको रक्त मोक्षण करना है तो आपको जलोका से रक्त मोक्षण करना ठीक रहेगा। अगेन ये जो डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं, ये जस्ट आपको एक ध्यान रखने के लिए कि अगर आप रक्त मोक्षण करते हो तो हीट एंड कोल्ड को अवॉइड करो। रक्त मोक्षण होने के बाद रक्त प्रसादक लघु दीपनीय आहार, ईषद अम्ल आहार लेना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी हम लोग थोड़ा सा जलोका के बारे में बात करके आगे बढ़ेंगे। जलोका, सबको मालूम है जलों का कहाँ लगानी चाहिए, क्या लगानी चाहिए, लेकिन मैं आयुर्वेद पॉइंट बात न करते हुए हम लोग अभी ओपीडी लेवल में, या आप जब जनरल प्रैक्टिस में पेशेंट पेपर लेके आता है आपके पास, तब लिखा हुआ रहता है डीबीटी है, गैंग्रीन है, नॉन एलिंग अल्सर्स है, वेरिकोज वेन्स है, थ्रोम्बोज पाइल्स जो अगर आपने डायग्नोस किया रहेगा तो वहां पे हमको वो पेपर देख के क्या करना है। तो लीच थेरेपी आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, लिस्ट ऑफ लीच थेरेपी मैंने बहुत कम लिए हैं, लेकिन लास्ट के जो 2 पॉइंट्स है, रिकंस्ट्रक्टिव, माइक्रोवैस्कुलर और प्लास्टिक सर्जरी में आजकल लीच बहुत यूज हो रही है। अगर आप डिस्कवरी चैनल्स में, मैंने एक बार देखा था कि फॉरेन कंट्रीज में लीच फार्मिंग होती है, एंड एक कांच की जो बर्नी होती है उसमें हजार हजार लीचेस वो भर के डॉक्टर्स को सप्लाई करते हैं। यानी हमसे ज्यादा वो लोग आजकल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज, माइक्रोवास्कुलर सर्जरीज में वहां पे यूज होता है। जहां कहीं आर्टेरियल या वेनस थ्रोम्बोसिस है, वेनस इनसफिशियंसी है, तो उसको भी करेक्ट करने के लिए लीच थेरेपी यूज की जाती है। अगर अभी आप ये पिक देख सकते हो, तो वहां पे दिखाया गया है कि आंख के अंदर भी लीच लगाई हुई है। हम लगा सकते हैं, हाँ हम लोग लगा सकते हैं, सेफली लगा सकते हैं, लेकिन उसका लगाने का जो कारण है वो आपको बराबर मालूम चाहिए। अभी ये जो लगाई गई थी ये ग्लूकोमा के लिए लगाई गई थी, सो बराबर उसका कारण देखते हुए आप लीच लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया है कि लास्ट में अगर आप देखोगे
तो एक डॉगी को भी हम लोगों ने लीच लगाई हुई है। ये मेरा पिक्चर नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगा, ये मैंने नेट से लिया हुआ है। तो वहां पे भी लीच लगाते हैं। वेटरनरी साइंसेस में भी अभी लीच का प्रचलन चालू हुआ है। साइट्स ऑफ सीराविदा, टोटल 700 सीराज बताए गए हैं, उसमें से 98 और 100 अवैध सीरा है। मैं इसमें डीप नहीं जाऊंगा, हम लोग आगे देखते हैं कहाँ कहाँ करना चाहिए। वैसे ही जैसे मैंने जलोगा के लिए बताया कि हम लोग मॉडर्न के हिसाब से ही देखेंगे कि कहाँ कहाँ सीरावेद करना चाहिए। तो एक सम फ्यू पॉइंट्स है कि सोराइसिस है, इचिंग लिम्स है, वेरिकोज वेन्स है, एक्जिमा है, यहाँ सब पे हम सीरावेदन करना चाहिए। सीरावेदन करते समय हम लोग दो पार्ट देख रहे हैं। आपके लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड में कुर्च, जिसको 5-6 नुकीले दांत होते थे, वो उससे रक्त मोक्षण किया जाता था। और अभी अभी के जमाने में हम लोग आईवी सेट, निडल, सिरिंज, ये सब यूज करके रक्त मोक्षण कर सकते हैं। आपको क्या क्या लगता है ये चीजें जरूरी है सीरावेद करने के लिए, जो आप सबको मालूम है, लेकिन तो भी एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कि आप रक्त मोक्षण करते समय, सीरा वेदन करते समय ये सब चीजें अपने साथ रखना जरूरी है। इसमें एक पॉइंट जो मैं आपको बताना रह गया, वो मैं ये बताऊंगा चालू करने के पहले ही, कि कंसेंट लेना आप भूलो मत। पेशेंट को सब कुछ आपने समझाने के बाद भी बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट कुछ भी क्लेम कर सकता है। इसके लिए उसके लैंग्वेज में उसको समझे, ऐसे शब्द में लिखकर कंसेंट लीजिए और फिर ही आगे बढ़िए। प्रधान कर्म, अवे फ्रॉम द आर्टरी, मर्म, संधि स्थान छोड़ के रक्त मोक्षण करना चाहिए। हम लोग कितना ब्लड सीरावेदन ले सकते हैं, तो मैक्सिमम 540 ml तक, यानी एक ब्लड डोनेशन की बैग जो होती है वो अराउंड 450 या 500 ml की होती है। तो उतना रक्त मोक्षण हम आराम से आप डोनेट बोलो या रक्त मोक्षण बोलो, हम कर सकते हैं। सीरावेदन लक्षण एंड फीचर्स, क्या फट से आपको देखने को मिलता है। तो सीरावेद जब आप करते हैं फट से, तो आपको सद्यो राग रुजा क्षमा, ये आप पढ़ सकते हो, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। जो मुझे थोड़ा अलग से बताना है वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि सद्यो राग जहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन हुआ है, सद्यो राग रुजा, रुजा पेन है, वो कम होता है, ये आपको वहां पे देखने को मिलता है। अगर समझो वहां पे स्वेलिंग बढ़ रहा है, इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, यानी आपने बराबर सीरावेदन नहीं किया है, या अगर ज्यादा हो गया है, तो पेशेंट को हेडेक हो सकता है, थर्स्ट, तृष्णा, बर्निंग विजन्स, कन्वर्जेंस, ये सब चीजें अपने को देखने को मिलती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप सिर्फ 10 ml भी निकालते हो, पेशेंट को कन्वर्जेंस आने लगते हैं। उसका अंतर्भाव अति योग में नहीं होता है, वो एक अलग व्यापन में चला जाएगा। क्यों, रक्त दर्शन से हुआ हुआ वो कन्वर्जेंस रहते हैं, इसके लिए वो व्यापन में चला जाएगा। बाद में क्या करना चाहिए, तो शीतल जल परिषेक करके वहां पे तेल पीछू करके बैंडेज कर सकते हैं। अयोग्य है तो योग्य करने के लिए आप बाकी सब दवाइयां लगा के वहां पे वापस ब्लेड रक्त मोक्षण कर सकते हो, या आपकी जो गलती है वो सुधार के वापस दूसरी जगह से आप सीरावेदन कर सकते हो। अगर ज्यादा होता है तो आयुर्वेद में जैसा बताया गया है, दाह करो, या दूसरे साइड पे वेदन करके रक्त मोक्षण जो हो रहा है ज्यादा, उसको कम कर सकते हैं। लोध्र शीतल औषधि वहां पे लगा के, हरिद्रा लगा के वहां पे पट्टबंधन करते हो, तो अतियोग के लक्षण कम हो सकते हैं। अभी हम लोग जो हमारा मेन के पास थोड़ा आगे, हेलो अमित, हेलो, हेलो, हेलो,
Hello, sir. Yes, Pankaj sir. या आई एम ऑडिबल? Yes, sir. या तो अभी हमारा जो टॉपिक था कपिंग, उसके तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रच्छान प्रच्छान याने मराठी मध्ये सांगतात त्याला फासे मारणे। तो कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं? तो हम लोग जहाँ पे रक्त धातु की दृष्टि है लोकलाइज, वहां पे कर सकते हैं। पीड़ित रक्त, लोकलाइज एक्जिमा, नम स्किन, पायोडर्मा, एलोपेशिया एराटा, एलोपेशिया टोटालिस, यहाँ पे हम लोग प्रच्छान कर्म कर सकते हैं। प्रच्छान कर्म कैसे करने का, क्या करने का? अभी ये जो आयुर्वेद हमारे ग्रंथकारों ने बताया कि 5.5 अंगुल पत्र चाहिए, ये सब ठीक है। लेकिन अभी 15 नंबर की सर्जिकल ब्लेड इज यूज्ड फॉर प्रच्छान कर्म। ये आप एक ध्यान में रखिए। क्या करते हैं वो साइट क्लीन करना है हमको, स्नायु, संधि, मर्म, इनका ध्यान रखते हुए पहले तो प्रेशर बैंडेज या टॉर्निकेट्स वहां पे लगा देना चाहिए। जहां पे आपको प्रच्छान कर्म करना है उसके ऊपर आपको वो लगा देना है। और शस्त्र जब आप चलाते हो तो इट शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। फर्स्ट पॉइंट, इट शुड नॉट बी टू डीप, इट शुड नॉट बी टू सुपरफिशियल। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रतिलोम गति। प्रतिलोम गति यानी आपके जो शरीर में जो छोटे बाल है हाथ के ऊपर, उनकी जो गति है ऊपर से नीचे जाती है, बराबर है। तो अगर आप प्रच्छान कर्म करना चाहते हो तो आप जो इंसिजन्स लोगे वो नीचे से ऊपर की तरफ लेना है। प्रतिलोम गति में आपको प्रच्छान कर्म करना है। आप यहाँ देख सकते हो कि पेशेंट के बाजू में डॉक्टर खड़ा रह के प्रच्छान कर्म कर रहा है। तो इससे जो इंसिजन होगा वो प्रतिलोम गति का इंसिजन आएगा। ये जस्ट एक थोड़ा जो श्रृंग कैसा होना चाहिए, अलाबु कैसा होना चाहिए, उसके लिए बताया गया है। श्रृंग 8-10 अंगुली लाम होना चाहिए, 3 अंगुष्ठ मूल भाग। ये थेरोटिकल पार्ट है जो हमें श्रृंग के लिए काम में आता है। कैसा करना चाहिए उसके बारे में लिखा हुआ है। अलाबू, अलाबू यानी लैंगलिया वल्गैरिस, जो वापस रक्त मोक्षण के लिए यूज होता है। उसका पिक नहीं था मेरे पास, तो ये मैंने कांच के इसका पिक यहाँ पे आपको दिखाने रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से मैंने यहाँ पे रखा। यंत्र, हेलो 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 हेलो। Yes, sir. You are audible. या तो आपको समझने के लिए मैंने घटी का ये पिक्चर रखा है कि घटी यंत्र से भी हम लोग रक्त मोक्षण कर सकते हैं। कपिंग थेरेपी, नाउ जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग आ रहे हैं कि कपिंग थेरेपी। व्हाट इज कपिंग थेरेपी? कपिंग थेरेपी इज एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन in which therapists put special cups on your skin for a few minutes to create the suction। ये हमको आपको मालूम है आयुर्वेद को भी अल्टरनेटिव मेडिसिन पे रखा गया है। जब हम कपिंग करते हैं तो स्पेशल टाइप्स ऑफ कप्स अपने स्किन के ऊपर या जहाँ पे हमको कपिंग करना है वो जगह पे रख के वहां सक्शन क्रिएट करते हैं और कपिंग थेरेपी वहां पे की जाती है। तो ये किसके लिए किए जाते हैं? इट कैन बी डन फॉर द मेनी पर्पसेस, फॉर पेन, फॉर इन्फ्लेमेशन, टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो, रिलैक्सेशन, फॉर वेल बीइंग, डीप टिश्यू मसाज। बहुत से रीजन है जिसके लिए हम कपिंग थेरेपी करते हैं। अभी कपिंग थेरेपी के बारे में बताया जाता है इट्स एन शूडो साइंस। व्हाई शूडो साइंस? बिकॉज अभी तक एकदम हैंडफुल्स ऑफ पेपर है जिसपे ये सिद्ध होता है कि ये ट्रीटमेंट सच्ची में काम आती है या नहीं है। हम लोग कभी भी एक ट्रीटमेंट या एक मेडिसिन को तब फॉलो करते हैं जब वो साइंटिफिकली प्रूव होती है कि हाँ बाबा ये मेडिसिन इसके लिए काम आ सकती है इतने परसेंट तक। लेकिन कपिंग के बारे में अभी तक कुछ भी इतने पेपर्स पब्लिश नहीं है कि हम लोग
कह सकते हैं कि हाँ इससे फायदा होगा ही, 1% होगा लेकिन होगा, ऐसा एक भी पेपर्स अभी तक पब्लिश नहीं है। उल्टा उसके बारे में कंसर्न्स बताए गए हैं कि इट माइट गिव bad effects or harmful effects to your epidermal, to your local circulation system or nervous system. यहाँ पे देखो लोटे से भी उन्होंने कपिंग किया हुआ है, अलाबू दिखाया मैंने आपको, ये जस्ट एक आयुर्वेदिक लास्ट जो कपिंग के टाइप से उसके बारे में। ये कपिंग कब जब फेमस हुआ, जब यूएसए के माइकल जो स्विमिंग के चैंपियन है रियो ओलंपिक्स के, उनके बॉडी पे जब ये राउंड सर्कल्स, रेड ब्राउन ब्लैकिश सर्कल्स दिखने लगे, देन पीपल स्टार्ट्स आस्किंग कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, एंड देन सबको पता चला कि ये यस ही हैज डन द कपिंग थेरेपी। और उसके बाद कपिंग थेरेपी को बहुत सारा नाम मिला। हिस्ट्री ऑफ कपिंग थेरेपी ये तो अभी अभी हुआ, लेकिन इसकी हिस्ट्री है, ये अभी डेवलप हुई हुई साइंस नहीं है। एंशंट इजिप्ट, एंशंट साइंस, चाइनीज, एंशंट मिडल ईस्ट, ईस्टर्न वेस्टर्न कल्चर्स में भी रक्त मोक्षण किया जाता था। In Finland, there was a tradition. There is a tradition. Few people follow it now. कि after sauna, उनका जो सोना बाद हेलो 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 Yes, sir. You are audible. या तो फिनलैंड में सोना के बाद कपिंग थेरेपी करने का ट्रेडिशन था, तो वो अभी भी कुछ कुछ जगहों पे चालू है। तो कपिंग के कुछ टाइप्स है क्या, तो कपिंग के भी टाइप्स बताए गए हैं। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट। तो आप जो भी कप यूज करते हो, वो कप के हिसाब से उसके टाइप्स किए हुए हैं, जैसे प्लास्टिक कप्स, ग्लास कप, रबर, मेटल, सिलिकॉन, सिरामिक, बाम्बू कप, ये जो आप मटेरियल यूज करते हो उसके हिसाब से उसके टाइप्स किए हुए हैं। देन द सक्शन, जो सक्शन क्रिएट होता है, वो सक्शन के हिसाब से भी उसके प्रकार किए हुए हैं। मैनुअल कपिंग, ऑटोमेटिक, सेल्फ सक्शन कपिंग सेट्स, ये एक दूसरा प्रकार है। तीसरा प्रकार है कि आप किसके लिए यूज करते हो, फॉर यूजिंग योर फेशियल, तो फेशियल कपिंग सेट, फॉर फीमेल्स देन फीमेल कपिंग सेट, फॉर मेल देन मेल कपिंग सेट, मसाज कपिंग सेट, ऐसे अलग अलग टाइप्स इसके भी किए हुए हैं। ये शायद आपको स्लाइड दिखेगी नहीं, लेकिन इसमें भी उन्होंने और टाइप्स करते हुए, आप अगर समझो स्पिरिट से वो इंस्ट्रूमेंट गर्म करते हो, तो उसके हिसाब से अलग से उसके टाइप्स किए हुए हैं। ऐसे बहुत सारे टाइप्स कपिंग के किए हुए हैं। ये जैसे कि रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बाम्बू कप, और नाउ डेज हम लोग जो यूज करते हैं सिलिकॉन कप, उसका ये रिप्रेजेंटेशन है। अभी हम लोग अपना जो मेन टॉपिक है ड्राई कपिंग सेट, उसके ऊपर आते हैं। व्हाट इज अ ड्राई कपिंग मेथड? ड्यूरिंग द कपिंग ट्रीटमेंट, अ कप, फिर वो ग्लास हो सकता है, बाम्बू हो सकता है, या मेटल हो सकता है, इज प्लेस्ड नियर द स्किन एंड हीटेड, एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो आपके स्किन के ऊपर रख देते हैं। इससे क्या होता है कि अंदर की जो हवा गर्म हुई रहती है, उसको कम स्पेस लगता है, तो आपका जो स्किन है वो अंदर सक होता है। ओके, तो सक्शन मेथड वहां पे क्रिएट होता है, और वहां पे वो कपिंग होती है। इसके लिए इसको ड्राई कपिंग कहा जाता है। यहाँ पे ड्राई का मतलब होता है यहाँ पे ब्लड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हीटेड कप इज प्लेस्ड with the open side directly to on the your skin. Procedure: when the hot cup is placed on your skin, the air inside the cup cools and creates vacuum that draws the skin and muscle upward to the cup. जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो ये जो कप है
ये 5 to 10 मिनट्स रखा जाता है एंड देन उसके बाद वो कप्स निकाले जाते हैं। कप्स निकालने के बाद जो थेरेपिस्ट है वो वहां पे ऑयलमेंट या बैंडेजेस करता है। ये जो मार्क्स वहां पे तैयार होते हैं वो यूजुअली 10 डेज या 15 डेज में निकल जाते हैं। ये है ड्राई कपिंग सेट हीटिंग मेथड। अभी हम लोग जो साइन में करते हैं वो ये मेथड से करते हैं, सक्शन कपिंग। यहाँ पे रबर पंप इज यूज। अगर आप देख सकते हो तो ये सब पिस्टन लाइक सब एक्शन का अपने को कप मिलता है और आगे प्लास्टिक के कप्स होते हैं। सक्शन हम लोग पिस्टन को खींच के क्रिएट करते हैं और वहां से जो स्किन है नीचे की वो ऊपर आती है सक्शन की वजह से, और यहाँ पे ड्राई या ड्राई कपिंग होती है। उसको कहते हैं रबर पंप सक्शन। नाउ अभी कुछ कुछ जगह पे ऐसा हुआ है कि वो लोग फॉर लेडी स्पेशली अपने फेस के लिए या अपने अपर आर्म्स या थाइस को टोन में रखने के लिए घर में ही ये सिलिकॉन कप का यूज कर रहे हैं। अगर आप देखते हो साइड में तो आप वहां पे एक उभरा हुआ जो चीज दिखते है उसको वो दबा के रखते हैं। जहां कहीं आपको कपिंग करना है वहां पे वो रख के वो रिलीज कर देते हैं तो सक्शन क्रिएट होता है और नीचे का जो स्किन है वो ऊपर चला आता है। वहां 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 पे एक फ्रिक्शन होने के कारण वहां पे मसल टोन बढ़ता है। इसके लिए मोस्ट ऑफ द हाई सोसाइटी गर्ल्स बोलो लेडीज बोलो आर यूजिंग दिस सिलिकॉन कप्स फॉर मसल टोन। इसके साथ में एक्यूपंचर ट्रीटमेंट भी किया जाता है। ड्राई कपिंग द कप्स ऑफ वेरियस शेप्स, बॉल शेप, बेल शेप्स अपने को मिलते हैं जो 1 और 3 इंचेस ओपन होते हैं। अक्रॉस इट्स ओपन 1 to 3 इंचेस ओपन होते हैं, वो यहाँ पे लिए जाते हैं। इन प्रैक्टिस कप्स आर नॉर्मली यूज ऑन सॉफ्टर टिश्यू पार्ट। सॉफ्ट टिश्यू पार्ट्स पे वो वहां पे यूज होता है क्योंकि अच्छे से सील क्रिएट होता है और आपका कपिंग अच्छा होता है। इट मे बी यूज सिंगली, आप सिंगल कपिंग सेट लगा सकते हो या ज्यादा भी कप्स लगा सकते हो, लेकिन 5 से 7 उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए, ऐसा ब्रिटिश कपिंग जो सोसाइटी है उनका कहना है। ये यू कैन क्लब विथ एक्यूपंचर नीडल्स ऑल्सो, और वहां पे आप कपिंग कर सकते हो। कुछ लोग कपिंग लगाने के पहले वहां पे लुब्रिकेशन करते हैं। लुब्रिकेशन से भी जो ये होता है क्या बोलते हैं स्किन और कप के बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो बहुत कम होता है और सक्शन अच्छा होता है। इसके लिए भी कोई लोग पहले उसे लुब्रिकेट करने के बाद वहां पे कपिंग करते हैं। द स्किन मार्किंग्स आर कॉमन आफ्टर द कप्स, बट ये जो डिस्कलरेशन है वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं। हार्डली इट्स टेक 1 or 2 weeks टू गो एंड ट्रीटमेंट इज नॉट दैट वेट पेनफुल। ये आप पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है कि हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो साइट है वो क्लीन की जाती है, देन लुब्रिकेशन किया जाता है। जो आप फोर्थ पिक्चर देख रहे हो वहां पे बताया कि कॉटन में कॉटन जिसको स्पिरिट लगाया हुआ है उसको गरम किया हुआ है और वो कप के अंदर रखने के बाद हमको जहां पे करना है यूजुअली ऑन बैक साइड का पिक्चर है ये। कप हीट होने के बाद वहां पे रख देते हैं 5 to 10 मिनट्स, देन उसको निकालने के बाद हमको ऐसे पिक्स वहां पे देखने को मिलती है। दिस इज कॉल्ड एज ड्राई कपिंग मेथड। वेट कपिंग करने के लिए फर्स्ट हमको ड्राई कपिंग करनी पड़ती है, यानी पहले हमको 5 से 7 मिनट तक ड्राई कपिंग करना पड़ता है। वहां पे अगर हम रबर पंप यूज कर रहे हैं तो रबर जहां पे आपको वेट कपिंग करना है वहां पे कप रखने के बाद 5 to 3 मिनट्स तक सक्शन करके रखना है। ये क्यों करना पड़ता है कि वहां पे जो ब्लड वेसल्स है वो एंगॉज हो, वहां पे ज्यादा ब्लड आ सके और हमने हमारा जो कपिंग का ये है ट्रीटमेंट हो वो सक्सेसफुल हो। इसके लिए पहले वहां पे
ड्राई कपिंग करते हैं। आफ्टर दैट वो कप निकाल देने के बाद 15 नंबर सर्जिकल ब्लेड से प्रतिलोम गति से फास्ट में वहां पे हम लोग इंसिजन्स देते हैं। इट शुड नॉट बी टू डीप, इट शुड नॉट बी टू सुपरफिशियल अगेन, देन इट शुड नॉट क्रॉस ईच अदर, पैरेलल होना चाहिए, किसी को भी किसी का छेद नहीं जाना चाहिए। ये फटाफट 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 आप मल्टीपल्स टाइम्स वहां पे इंसिजन देने के बाद वापस कप वहां पे रख के रबर पंप से सक्शन करते हो तो ब्लड जैसे पिक्चर में दिखाया है वैसा आना चालू होता है। कुछ कुछ लोग अभी स्टैब ब्लेड भी यूज करते हैं, दे जस्ट स्टैब इट, वो इंसिजन नहीं देते, वो स्टैब करके छोड़ देते हैं। तो उसके बाद भी अपने को ऐसे वेट कपिंग देखने को मिलता है। अभी ये वेट कपिंग कहाँ बताया गया है? वेट कपिंग इज मच मोर पॉपुलर इन इस्लामिक वर्ल्ड। अल्लाह ने जो बोला हुआ है, आई एम नॉट श्योर अबाउट, किसी ने वो बुक लिखा है, क्या है वो, हेदियात करके एक बुक है, उसमें उन्होंने बताया है कि वेट कपिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन क्योरिंग योरसेल्फ। सो इस्लामिक वर्ल्ड में वेट कपिंग बहुत ज्यादा किया जाता है। तो सिर्फ वहां पे है क्या? नहीं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में भी हमको जो स्टैग्नेंट ये है, क्या बोलते हैं वहां पे, ब्लड बोलो या लिम्फ बोलो, उसको निकालने के लिए और काय का फ्लो अच्छा होने के लिए वहां पे भी उन्होंने वेट कपिंग का उपयोग बताया हुआ है। वो कहते हैं कि कॉमन कोल्ड, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, यहाँ पे सबके यहाँ पे आप वेट कपिंग कर सकते हो। उन्होंने इतना भी बताया है कि इट शुड नॉट बी यूज्ड वेयर द स्किन अल्सर इज फर्स्ट, सेकेंड एब्डोमिन पार्ट ऑफ प्रेग्नेंट वुमन, सैक्रल पार्ट ऑफ प्रेग्नेंट वुमन, वहां पे हमें वेट कपिंग नहीं करना है। अगेन थोड़ा सा इस्लामिक वर्ल्ड में जाते हुए, व्हाट इज द हिजामा? हिजामा इज द लिटरली मीन्स टू सक और टू रिटर्न टू अ नॉर्मल स्टेट। अपने इंटरनल पीस, इंटरनल नॉर्मल स्टेट में आने के लिए उन्होंने कहा है कि यू हैव टू डू द हिजामा ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर। अगर आपको कुछ बीमारी नहीं है तो आप 2 से 3 बार साल में हिजामा करना जरूरी है। वो कहते हैं कि इससे क्या होता है कि आपका जो स्किन अगर डार्क है तो वो लाइट होगा, आपकी आईसाइट इंप्रूव होगी, और आगे कहते हैं कि इट पेन रिलीफ, फर्टिलिटी, इट क्लीन्स योर बॉडी, डिटॉक्सिफाइज योर बॉडी, बूस्ट योर सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि ब्लैक मैजिक से बचने के लिए भी यू हैव टू डू द वेट कपिंग। इतना उन्होंने एडवोकेट किया हुआ है। देयर आर मेनी पॉइंट्स इन बॉडी वेयर वी कैन डू द वेट कपिंग, लेकिन उसमें जाने से अच्छा है, दिस इज एक प्रेजेंटेशन दिया है कि अगर पेन है तो कहाँ पे करना चाहिए। दिस इज फॉर शोल्डर पेन। देन अस्थमा है तो उन्होंने कुछ ग्रुप्स किए हुए हैं, ये उनके स्टडीड पार्ट है कि वहां पे आपने अगर कपिंग करते हो तो आपको वहां पे फायदा हो सकता है। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे कि आप कहाँ करते हो, तो इफ आई मेरे को करना है तो जहां पे पेन है, जहां पे स्वेलिंग है, वहां पे मैं कपिंग करना बहुत ज्यादा उचित समझता हूँ। इस्लामिक इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर आप ये पिक देख रहे हो तो 1 और 55 नंबर आपको दिखते रहेंगे, डबल सर्कल है। 55 नंबर का जो स्पॉट है वो आपके दोनों शोल्डर के बीच में और सर्वाइकल जहां मिलता है वहां पे वो स्पॉट है, और वहां पे मैक्सिमम वेट कपिंग करना चाहिए ऐसा कहा जाता है। वहां पे अगर आप करते हो तो अराउंड 80 टू 90 डिजीजेस है जो कुरान में या उनके ग्रंथ में कही है वो ठीक हो सकती है। इसके लिए फर्स्ट और 55 पॉइंट नंबर का जो पॉइंट है वहां पे आपको रक्त मोक्षण या वेट कपिंग करना चाहिए।
ये बाकी एक रिप्रेजेंटेशन है कि आप कहाँ कहाँ वेट कपिंग कर सकते हैं। मोड ऑफ एक्शन में वो बोलते हैं कि इट relieves the muscle tension and by which it improves the blood flow and promote cell repair. It may also form new tissues and creates the new blood vessels in the tissue. ये उन्होंने बताया कि अगर क्या फायदा हो सकता है, उसका एक्शन कैसे होता है। कपिंग ऑल्सो प्रमोट्स दिस स्टेराइल इन्फ्लेमेशन। वहां पे जब हम कप यूज करते हैं तो वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है, लेकिन वो स्टेराइल रहता है क्योंकि वो किसी बाहर के चोट लगने के कारण नहीं है, ये हम लोगों ने किया हुआ रहता है, इसीलिए वो स्टेराइल इन्फ्लेमेशन रहता है। एंड स्टेराइल इन्फ्लेमेशन इज फ्री फ्रॉम पैथोजेंस, इट इज ड्यू टू मैकेनिकल ट्रूमा, और वो करने के बाद इट ट्रिगर्स एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, flooding the area with the white cells, platelets, and by which it helps in healing. So this is the mode of cupping. Benefits of cupping, कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं according to the British cupping society. The again वही arthritis, fertility, skin disorders, migraine, anxiety, bronchial congestion, varicose veins, वहां पे cupping करने के लिए एडवोकेट किया हुआ है। Again, it boosts the circulatory immune system, cleanses and detoxifies the body. इसके लिए कपिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा उनका मानना है। अगेन द साइड इफेक्ट ऑफ कपिंग, कपिंग में कॉज पेन। अगर आपको हाथ जो आप प्रच्छान कर्म कर रहे हो या स्टैप कर रहे हो, कितना अंदर जाना चाहिए, कितना ये अगर उसका बराबर प्रिसीजन नहीं है, देन इट कैन गिव यू पेन, स्वेलिंग, बर्न्स। अगर आप ड्राई कपिंग करना चाहते हो बाय द वे ऑफ स्पिरिट स्वॉब, देन स्पिरिट अगर नीचे गिर रहा है तो बॉडी पे गिर के बर्न भी हो सकता है, सो बर्न का ध्यान रखना चाहिए। डिजीनेस, नॉशिया, फेंटिंग, स्वेटिंग, स्किन पिगमेंटेशन, ये सब साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलती है। देन कपिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स राउंड पर्पल मार्क और सर्कुलर ब्रूज ऑन द स्किन, इट मे टेक फ्यू वीक्स टू फेड। ये हमको पेशेंट्स को बताना बहुत जरूरी होता है। एक पेपर मैं आपको यहाँ शेयर करना चाहूंगा कि जो मैंने इंटरनेट से लिया हुआ है कि सच्ची कपिंग हेल्प करता है कि नहीं करता है। एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द इफेक्ट ऑफ कपिंग थेरेपी एज अ ट्रीटमेंट फॉर एंटीरियर नी पेन, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ योर नी, वहां पे दर्द है, उसके लिए उन्होंने कपिंग किया था। एक ही बार कपिंग किया, उसके प्री एंड पोस्ट जो लक्षण या कैटेगरीज है वो यहाँ पे उन्होंने रिकॉर्ड किए हुए हैं, और वो सिर्फ एक दिन रिकॉर्ड नहीं किए हुए हैं। प्री कपिंग उसके क्या पॉइंट्स थे या क्या वैल्यू थी वो उन्होंने लिखे, कपिंग करने के बाद क्या वैल्यूज थे वो उन्होंने असर्टन किए, देन एक वीक के बाद, 2 वीक के बाद और 3 वीक के बाद, ऐसे उन्होंने 3 वीक तक वो पेशेंट को इवेल्युएट किया, एंड देन ये पेपर प्रेजेंट हुआ है। अगर आप देख सकते हो तो पहला ही अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये आया हुआ है उसमें कि पैसिव, दिस इज पैसिव ROM, पैसिव ROM यानी रेंज ऑफ मूवमेंट, जो नी का रेंज ऑफ मूवमेंट था। पैसिव यानी जब हम खुद यानी डॉक्टर जब पेशेंट को हेल्प करके उसकी मूवमेंट कराता है उसे कहते हैं पैसिव। तो वो पैसिव जो ROM है बिफोर कपिंग, दैट वाज अराउंड 142.64। कपिंग करने के बाद पैसिव ROM इज 148, यानी बड़ा है, रेंज बड़ा है। आफ्टर 1 वीक 150, आफ्टर 2 वीक्स इट इज 150 अगेन, एंड आफ्टर 3 वीक्स इट्स 151, यानी कपिंग करने के बाद 3 वीक तक रेंज ऑफ मूवमेंट पैसिव बढ़ा हुआ है। चलो ठीक है, पैसिव तो डॉक्टर कितना भी खींच सकता है, लेकिन पेशेंट एक्टिव ROM
एक्टिव ROM इज डन बाय पेशेंट। वहां पे डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट या थेरेपिस्ट के इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो एक्टिव ROM बिफोर कमिंग बिफोर कपिंग is 134. Immediately after cupping is 140. After 1 week is 143. After second week is 145 and after third week is 147. यानी आप देख सकते हो कि चलो डॉक्टर बायस या थेरेपिस्ट बायस हो सकता है, लेकिन पेशेंट तो बायस नहीं हो सकता है। उसको जितना होगा उतना ही वो रेंज ऑफ मूवमेंट कर सकता है। तो एक्टिव ROM से हम लोग ये देख सकते हैं कि कपिंग के बाद 3 वीक तक उसका इफेक्ट कितना अच्छा है। वैसे ही उन्होंने पेन के लिए भी किया हुआ है, वेलबींग के लिए भी किया हुआ है। ये पूरा जो चार्ट है वो यही बताता है कि आफ्टर कपिंग 3 वीक्स तक जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छे रहे, बहुत encouraging रहे। The table above shows that there is a statistical significance difference in range of motion, active range of motion, than pain visual analogous scale, well-being scale, and it goes in favor of P percentile 0.05 means बहुत अच्छा इसका इफेक्ट हमको देखने को बोला। जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत अच्छी थी। Facts about the cupping. Cupping is long practice treatment that may help ease the symptoms of both temporary and chronic health conditions. As with many alternative therapies, keep in mind that there haven't been extensive studies performed without bias to fully assess its truly effectiveness. Uh, Before saying thank you, I will just share one of my experience with the cupping. Why I started doing the cupping therapy. There was a patient, I think 55 years old lady थी. She came with the cellulitis of the right knee. एंकल से लेके ऊपर तक उसको पूरा सेल्यूलाइटिस था। सो तभी हमारे यहाँ पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था। सो फ्यू यूनानी पीपल्स वेयर देयर कि हम लोग इसमें ये करते हैं, हिजामा करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। सो हम लोगों ने बोला ठीक है चलो हम लोग भी करके देखते हैं। सो आई कॉल दैट सेट, क्योंकि अभी प्रोग्राम चल ही रहा था तो हम लोगों ने वो सब इंस्ट्रूमेंट मंगा के लिए, रबर पंप वाला जो मैंने बताया हम लोग करते हैं वो मंगा के लिया। एंड आई अभी किसी ने किया नहीं था, सो आई स्टडीड एंड स्टार्टेड डूइंग। तो जैसे ही मैंने पहला कप रखा और सक्शन लिया, यू वोंट बिलीव वहां पे एक पॉइंट भी ब्लड नहीं था। सो आई वाज सरप्राइज। क्या था वहां पे? होल लिम्फ, पूरा जो फ्लूइड था, वो पूरा कप में था। एंड विद इन 30 सेकेंड्स वो कप पूरा भर गया था। सो वो वापस निकाला हम लोगों ने। वो टाइम पे मेरे को मालूम नहीं था कि कितना कप लगाने का है। स्टिल मैंने 4-5 कप लगा दिए थे और देखते हैं बोला अभी दूसरे दिन क्या होता है। बैंडेज किया, बेटाडीन लगाया, बैंडेज किया, मालूम नहीं क्या होगा क्या नहीं। एंड सेकेंड दिन हम लोग गए पेशेंट को देखने के लिए। सो वो मीन्स वो इतनी हैप्पी थी कि मेरे को किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लेने का है, लेकिन एलोपैथी इसमें भी मेरे को इतना फर्क नहीं गिरा जितना 24 आवर्स में मुझे आज गिरा है। तो शी वॉज हैप्पी, शी वॉज आफ्टर मी कि आप और एक बार करो, आप और एक बार करो, कुछ भी हो जाएगा मैं देख लूंगी, यू डोंट वरी, आपको चाहिए तो कंसेंट में देती हूँ, आप और एक बार करो, आप और एक बार करो। सो वी अगेन प्लान आफ्टर 3 डेज। 3 डेज के बाद लेकिन उतना फ्लूइड नहीं आया, लेकिन फ्लूइड था मिक्स विद ब्लड और उसको बहुत अच्छा रिलीफ मिला। एंड दैट पेशेंट वाज वेंट होम वेरी हैप्पीली। सो उसके बाद हम लोगों ने रेगुलरली कपिंग करना चालू किया। देन लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या कैल्केनियम स्पर, इसमें हम लोगों ने कपिंग सायन में हम लोग करते हैं और उसके अच्छे रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। सो आई थिंक आई शुड से थैंक यू to Ayush Shala team again. If you have any questions, we can have it. Thank you very much, Dr. Pankaj Started, sir, for enlightening us with your experiences in cupping therapy and Rakta Mokshan. We will
go for question answer session now. The session is open for question and answers. Uh, yeah, first question I will take is from Jishan Ashraf. Are there any institutes where we can learn cupping therapy? In Unani only. Yes, Unani college only. yeah, that's right. If possible, we will also arrange some hands-on training on cupping therapy, and I will invite Dr. Yes, Pankaj sir. Tatet sir as expert faculty. We will plan something for cupping therapy hands-on training program for sure. Uh, yeah. Anju Navle is asking, can cupping be done in plantar fasciitis along with varicose veins? And if Yes, 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 yes. You which can, site? you can. Which site we can do cupping therapy in plantar fasciitis and varicose veins? मैं मो- जहाँ पे ज्यादा टेंडरनेस है वहां पे आप कर सकते हो. Okay, thank you very much. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डॉक्टर अमृता जायसवाल. कितने कितने दिन में कपिंग करनी चाहिए? कितनी सेटिंग्स करवानी सी चाहिए? सी फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं है कि कितने दिन में करना चाहिए. लेकिन जब एज अ आयुर्वेदिक पर्सन एंड दैट टू एंड पंचकर्म एक्सपर्ट, तो मैं जो रक्तमुक्षण के लिए कहा गया है कि अगर आपको वहां पे रक्तमुक्षण करके भी फायदा नहीं हो रहा है, पेन अभी भी है, देन यू कैन डू इट अगेन आफ्टर 24 आवर्स. अगर नहीं है देन यू कैन टेक अ कॉल. आप 3 दिन 5 दिन के बाद भी कर सकते हो. ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो. यू टेक योर बोन कॉल. अगर आपको लगता है कि जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं है तो आप 24 आवर्स के बाद भी कर सकते Okay, thank you very much. Next question is from Dr. Datta Papartekar, who is our one of the faculty in team Shala. He is asking sir specific areas on body where we should avoid weight cupping. हो. सी जैसे अभी वी हैव सीन इन स्लाइड इन चाइनीज ट्रेडिशनल थेरेपी, दे से कि प्रेग्नेंट लेडी के सैक्रल रीजन एंड एब्डोमेन पे नहीं करना चाहिए. तो वो एक पॉइंट हम लोग लेके चलते हैं. लेकिन जहाँ पे आयुर्वेद शास्त्र ने नहीं बोला है, जैसे संधि स्थान, मर्म स्थान, वहां पे कपिंग नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, और नहीं करना चाहिए वहां पे. Yes, of course, that is absolutely right. Including murmur also, we can take care of that murmur. या Next question is from Dr. Sachin. He is asking, can we do cupping in PCOS cases as well? PCOS. So that Yes. question goes to Mangesh Patil sir only. Yeah, I have no experience about PCOS cases and cupping therapy, but I think after listening to your lecture, I believe that there is some importance in infertility cases and cupping. So we can try with the cupping therapy in PCOS, and we will share the results surely. Thank you very much for your सर questions. मेरे को भी And बताना थोड़ा रिजल्ट, अगर कुछ भी हो रिजल्ट मुझे भी बताना. yes, of course, sir. Negative results are always appreciated because then you यस come to यस know और where to apply the therapy or where to not apply the therapy. यस यस सर. Yes, yes. And next question. Yes, the same question, sir. How can we use cupping therapy in infertility? So we will discuss on it with the experts like Dr. Pankaj Tatet sir, and then we will come to know and we will try on trial and error basis on PCOS and infertility cases in our OPD and IPD, and we will let you know after the results. Uh, Next question is from Dr. सर Umesh Lunawat. एक मिनट Yes, sir. फक्त Yes, sir. एकच मिनिट सर. फ्रेंड्स, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, दिस इज आई एम ऑल्सो लर्निंग वेयर टू डू और वेयर नॉट टू डू. आई एम ऑल्सो लर्निंग कि क्या करना चाहिए, किधर करना चाहिए, किधर नहीं करना चाहिए, कहाँ पे मैं फेल होता हूँ. एज ए इंस्टीट्यूट, इट्स एन क्या कहते हैं, इट्स एन एडवांटेज फॉर मी टू सी द न्यू पेशेंट्स टू डू. निगेटिव भी होता है तो मेरे को कोई फर्क नहीं गिरता है, बिकॉज इट्स एन इंस्टीट्यूट. तो इतना पेशेंस मेरे छूट टूटते नहीं है. बट
इन प्राइवेट प्रैक्टिस जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हो, वहां पे मैं अगर आपको झूठ बोलूं कि आप करो और फायदा होगा और पेशेंट आपका टूटता है, देन यू विल ब्लेम मी। सो आई विल नॉट से एनी रॉन्ग थिंग टू यू। अगर मैं करता हूँ तो हाँ मैं करता हूँ, अगर मुझे कुछ समझ में आता है, कुछ अगर इसमें और एडिशन होते हैं, तो आई विल शेयर श्योरली शेयर विथ। That is absolutely perfect, Dr. Pankaj Tatet sir. And that's our belief also, that you will say the things which you have seen on your own with your own eyes, and which you have practiced, and that's the same thing we are practicing. One thing I want to tell all the delegates, that Dr. Pankaj Tatet was in YMT Ayurvedic Medical College, where I am still working. We are very good friends, and we have done many things, very innovative things in Panchakarma also. And whatever we are sharing here, that is our personal experience, and the experience which we have got from the different patients and different therapies. So we will not tell anything which we have not practiced, and if we tell that you can do it, then that is surely you can do it. And if we have not done it, then we will tell you that we have not done it, you can try it. Like in infertility and PCOS also, we will try on our patients, and then we will come to the results, and we will let you know. And that is our motto only, that you will also try, and we will sum up all the experiences and results, and we will make a statistical analysis, so that we can publish in front of all the delegates for their betterment. Thank you very much, Dr. Pankaj. And next question is from Dr. Umesh Lunawat. Can we apply cups on joints like ankle joint? See, you can apply, no issue in that, but just keep in mind Sandhi Sthan and you can apply, no problem. Yeah. Uh, Next question is from Dr. Sanket. I think we have already discussed in the lecture also. Can we apply cup on the left shoulder stiffness, back pain, neck pain? Yes, of course. The answer Yes, is yes, already you given can. by Dr. Pankaj Tatit sir. Yeah. Next is very tricky question by Dr. Piyush Kumar. Autoimmune myositis. She had pain in some joints after doing leech, etc. She had relief for 3 to 5 days. Next, after that, place of pain will be changed. No arm is there. So, can we help her with cupping therapy? Sir, sorry, I don't have any experience. Yeah. So we will move to next question. Uh, Yeah, it is a very big spelling mistake. Instead of depth, it is written death of Prashan. How much? So she wants to ask, Dr. Vanita wants to ask, what is the depth of the Prashan karma? I think you Okay. answered. See, It yeah, tells us. still I'm giving the answer. See, आयुर्वेदोक्त ग्रंथ में बताया गया है कि एक यव इन मांसल प्रदेश जहाँ पे भी आपके क्या बोलते हैं वहां पे स्किनी पार्ट है, वहां पे एक यव यानी 5 to 10 mm तक आप डीप जा सकते हो और प्रच्छान कर्म कर सकते हो। लेकिन अगर जहाँ बोनी पार्ट्स है, वहां पे हाफ यव, आधा यव इतना ही डीप आपको जाके प्रच्छान कर्म करना है। Yes, sir. And in our text also, there are some Yogya Vidhi and regarding Prashan Karma, Brihi Matra, Yava Matra, Kesh Matra, explained very well. So next question is from Dr. Sachin. Rather than surgical blades, can we use small needle prick for cupping? सर मैं लास्ट मैंने आपको बताया कि यू कैन स्टैब ऑल्सो, लेकिन स्मॉल जो ये होते हैं नीडल्स होते हैं, वहां से अगर आपका कप बराबर नहीं लगा हो तो रक्त मोक्षण नहीं हो सकता है। यू कैन एक्यूपंचर एक्यूप्रेशर टाइप ऑफ अगर आपको करना है, यू कैन डू इट, लेकिन वेट कपिंग कब करना है तो स्मॉल नीडल से नहीं होगा। एक्यूप्रेशर के लिए ओके, एक्यूपंचर के लिए ओके, लेकिन वेट कपिंग करना है आपको, क्लासिकल वेट कपिंग हिजामा अगर आपको करना है तो नीडल काम में नहीं आएगी। वहां पे आपको सर्जिकल ब्लेड या जो शेविंग ब्लेड होती है, इफ योर हैंड इज टू गुड यू कैन यूज इट। Next question is very interesting and very tricky question from Dr. Jyoti Motija. Uh, can we do weight cupping in Amvat?
Yeah, you can do it. Yes. So that is the confidence, confident of the job. What Dr. Pankaj Tated is speaking, you can do it on the Ahmedabad also. Thank you very much, Dr. Pankaj Tatet, sir. And we will go to the last question of today's session. Uh, that is from Dr. Anita Javde. Sir, please explain about facial cupping. If you have any experience about Facial facial, cupping. yes, sir. See that if you are talking about the silicon cupping, then I have just read on that on net. Ki, facial Amazon. If you go to an Amazon and you put facial silicon cup, then they provide you with the silicon cup. What I have said in the lecture, it reduces sterile inflammation and it improves your skin tone. Hence, that silicone cups can be placed on your face where the skin is loose, and you can try for around 15 to 1 month. You improve your skin tone, so that can help you for your facial upliftment and tone of your face. Yes, sir. Thank you very much. And one thing I want to say about Dr. Pankaj Tathred, he is really a hardworking and very much a scholar personality. One who worked with me also. He is the pioneer of Panchakarma technician course at YMT, and he has developed certain syllabus for that also, and he is doing Panchakarma courses at Sayan Ayurvedic Medical College since last 5 to 6 years, I think so. And he will be the part of our next series Ghar Vapsi, and he may be talking on Ayurvedic management or Ayurvedic Panchakarma therapy in general practice, I think so. I congratulate Dr. Pankaj Thatet sir for such wonderful uh, explanation about cupping therapy and Rakta Mokshan therapy, and there are certain appreciation from delegates also. So thank you very much once again, Dr. Pankaj Thatet sir, and be with us in Ghar Vapsi series. We are waiting for your wonderful lecture again in Ghar Vapsi series. And once again, I will request all the delegates to please propagate our Ghar Vapsi series so that everyone can join our series. Thank you very much once again, and thanks all the delegates. You can now leave the meeting. Thank you, Dr. Pankaj Tatet sir. You can also leave the meeting. Thanks again.